Bismillahirrahmanirrahim. So today we will do a new topic, important topic in our physiology, that is the sympathetic nervous system. Basically, a human body operates in such a way that multiple functions are going on inside human body from day to night. In them, some functions are in our own will, some functions occur involuntarily. So, this system, known as sympathetic nervous system, is a system of operating human body which is a part of the autonomic nervous system. Now, autonomic nervous system occurs in human body involuntarily. So in some condition, organ of human body responds in involuntary way and do multiple functions under the heading of autonomic nervous system, that is divided into two, sympathetic and parasympathetic. Today we will do sympathetic nervous system. आज बताएंगे आपको कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है. Before understanding this, very important, if you understand these six things, all thing in sympathetic nervous system will clarify to you with concept. Now, you have to understand K related with the both systems, especially today K in sympathetic nervous system, you have to identify, understand, clear the concept about the ganglion, about the preganglionic neuron, about the postganglionic neuron, and their functions. Okay, what is the preganglionic neuron? Its size and transmitter. What is the postganglionic neuron? Its size and transmitter. What are neurotransmitter? Which function as sympathetic? What is the role of our link of adrenal medulla to this system? And what are the functions of that sympathetic nervous system? ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो यू विल क्लेरिफाई, नथिंग रिमेन इन दैट सिस्टम. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. इन कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर करना है, तो वन बाय वन ये चीजें हम आपको बताएंगे. जब ये आपको क्लियर हो जाएंगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज क्लेरिफाइड टू यू, देन अब पहले आपने समझना है कि गैंग्लियन क्या है. उसके लिए फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन द डायग्राम ऑन द लेफ्ट साइड. आप पहले इस डायग्राम को देखें, टेक्स्ट को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए. डायग्राम में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ लफ्ज, ये एरो मेरा है, इस पे लिखा हुआ ऑटोनॉमिक गैंग्लियन. नाउ ऑटोनॉमिक गैंग्लियन मींस के बेसिकली क्या होता है कि in our peripheral nervous system, means outside the brain and spinal cord, there are multiple areas where neuronal cell bodies are accumulated, collected. कि न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो आपस में मिली होती है. अगर एक गैंग्लियन को हम लेंगे, उस गैंग्लियन को डिवाइड करेंगे, खोल के देखेंगे, तो जब हम देखेंगे तो एक न्यूरॉन में हमें हो सकता है 100, 1000, thousands तक न्यूरॉनल सेल बॉडी मिलेंगी. अब सेल बॉडी वहां पर कलेक्ट है, एक स्ट्रक्चर है, beaded like structure, that is known as ganglion, physical structure where cell bodies are connected with each other. Now what happened here, basically simply definition of the ganglion is that it is a group of neuron cell body in the peripheral nervous system, maybe around the spinal cord, near the vertebral column, maybe near some abdominal organ, some organ in the thorax, some organ in our face, but these are collection of cell body. So ganglion will be present in whole of the autonomic nervous system, in sympathetic as well as parasympathetic. तो अब गैंग्लियन में सेल बॉडी तो कलेक्ट होती. इस डायग्राम में अगर आप देखें, यहाँ एक गैंग्लियन के पास ये एक एक्सॉन की तरह, तार की तरह स्ट्रक्चर आता है, इसको कहते हैं एक्सॉन. एक्सॉन आ रहा है इस गैंग्लियन में, और ये न्यूरॉनल सेल बॉडी लिखा है, उसके साथ यहाँ कम्युनिकेट कर रहा है. इसका मतलब ये एक सेल बॉडी दिखाई गई है. इस गैंग्लियन के अंदर होंगी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऑफ सेल बॉडी. डायग्राम में सिर्फ एक दिखाई गई है, तो आप इसको इस तरह समझें कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है. यहाँ पर क्या होता है, एक तो सेल बॉडीज कलेक्ट होती है, दूसरा जो ब्रेन से देखें सीएनएस से न्यूरॉन मैसेज लेके आते हैं, उनको कहते हैं प्री गैंग्लियनिक एक्सॉन ऑफ प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन. तो
प्री इसलिए कहते हैं कि गैंग्लियन के पीछे नर्वस सिस्टम की तरफ है, वो इस गैंग्लियन के अंदर इस न्यूरॉनल सेल बॉडी के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, इस कम्युनिकेशन को साइनेप्स भी कहते हैं। तो गैंग्लियन क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी in the peripheral nervous system. It is also the site where the message from the central nervous system come, and that message is communicated with that neuronal cell body. So it is also the site of synapse between the preganglionic and this neuron, which is also known as postganglionic neuron, because this has to supply to organ. तो गैंग्लियन क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है। यहाँ प्री गैंग्लियन न्यूरॉन साइनेप्स करता है उस न्यूरॉन के साथ जिससे पोस्ट गैंग्लियनिक एक्सॉन ने निकलना है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये इसके पीछे वाले न्यूरॉन या उसके एक्सॉन को कहते हैं प्री गैंग्लियनिक। ये सेल बॉडी होती है खुद पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन की, जिससे निकलता है पोस्ट गैंग्लियनिक एक्सॉन, और हमेशा ऑलवेज पोस्ट गैंग्लियनिक एक्सॉन विल सप्लाई द ऑर्गन। क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? अगर ये क्लियर हो जाएगा, आगे whole of the sympathetic nervous system will be clarified to you. Clear this point? So again, this definition you should know. Related with that, this will also come in our parasympathetic, but related with sympathetic के sympathetic के अंदर एक ganglion होता है जहाँ sympathetic nervous system के न्यूरॉन की सेल बॉडी कलेक्ट होती, जमा होती, एक से ज्यादा प्रेजेंट होती। ये होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन के भी बाहर होगा, स्पाइनल कॉर्ड के भी बाहर होगा। क्लियर? Now we can define the sympathetic nervous system as this is the division of the autonomic nervous system. Yes, that is the division. The sympathetic nervous system is specially known for its activation during fight or flight response. This is familiar word for you, flight fight response. कि जब भी emergency condition होगी, ये system activate होगा. We will give you its example कि how it is activated और आपके जिस्म में क्या changes लाता है. That we will do in next slides. So sympathetic is the emergency nervous system, part of ANS, autonomic nervous system. Now, importantly, each of these systems are under the control of the brain. So it means कि इसकी activation भी कहाँ से होगी? Brain से होगी, central nervous system से होगी, spinal cord से होगी, वहाँ से message आएगा for activation of sympathetic nervous system. Now see that कि ये क्या है। अब देखें बेटा, इस डायग्राम को आप, इसका कॉन्सेप्ट आप बहुत ज्यादा क्लियर करें, देन वी विल डू नेक्स्ट स्लाइड। सी दैट डायग्राम। सी के इसमें क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं, थोड़ा गौर, इसको 1 मिनट के लिए आप देखिए, गौर करें क्या है, देन आई विल एक्सप्लेन। इट सेज दैट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखा है, उसके बाद एक ये सेल बॉडी है, जिसके बाद ये एक एक्सॉन आ रहा है, दैट एक्सॉन कम एंड साइनेप्स विद ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। दिस इज सेम ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, वहां से एक दूसरी न्यूरॉन का एक्सॉन निकल रहा है जो कि टारगेट टिश्यू को सप्लाई कर रहा है, अपना मैसेज दे रहा है। नाउ इंपॉर्टेंटली कि there are 2 neuron contributing in this system. This is whole autonomic nervous system, but this concept will be applied to sympathetic as well as parasympathetic. P ganglionic neuron will be starts origin from the central nervous system. It will come out from the central nervous system, will reach and give its message to autonomic ganglia. This neuron is known as first neuron of this autonomic nervous system, or we can say first neuron of sympathetic nervous system. The first neuron is known as preganglionic neuron. Why pre? Means this is present before ganglia, इसलिए इसको कहते हैं प्री गैंग्लियनिक। ये आएगा, साइनेप्स करेगा इस न्यूरॉन के साथ जिसका नाम है सेकंड न्यूरॉन होगा, इसको हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। गैंग्लियन के आगे इसने मैसेज देना। अब यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा जो इस सेकंड नंबर 2 नंबर न्यूरॉन को एक्टिव करेगा।
ये न्यूरोट्रांसमीटर हम आपको बताएंगे कौन सा होता है, और ये आपने नाम याद करना है, इंपॉर्टेंट। सेकेंड न्यूरॉन अगेन यहाँ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा जो कि टारगेट टिश्यू को एक्टिव करेगा, फंक्शन करेगा टारगेट टिश्यू में। इसको हम कहेंगे ब्लूइश को, दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। दिस रेडिश विल बी कॉल्ड एज neurotransmitter of preganglionic neuron. If you clear this, you will clear whole of that sympathetic nervous system. Clear? आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि दो न्यूरॉन जो हमने बताए, नंबर 1 नंबर 2, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, ये कहां से निकलते हैं, ओरिजिन कहां से होती है इसको? तो दे विल बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, स्पेशली फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड। सी हियर द सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड from where number 1 neuron is coming and giving message here. This is known as sympathetic ganglia. So it will activate number 2 neuron. 2 neuron will give smooth muscle gland, means कि this one on the right side is our target tissue. Right side हमारे टारगेट टिश्यू हैं। यहाँ नंबर 1 न्यूरॉन ने मैसेज दिया गैंग्लियन तक, गैंग्लियन से नंबर 2 गया। फर्स्ट को हम कहेंगे प्री गैंग्लियनिक, सेकंड को हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियनिक। इस डायग्राम में अगर आप देखें, इफ यू सी दैट डायग्राम, इन दिस डायग्राम देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू न्यूरॉन। क्या डिफरेंस है? देखें नंबर 1 और 2 में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? फर्स्ट डिफरेंस, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन ओरिजिनेट फ्रॉम सीएनएस, स्पाइनल कार्ड से निकल रहे हैं सीएनएस। सेकेंड ऑर्डर, they originate from sympathetic ganglia, or their cell body is present in sympathetic ganglia. First neuron activates the post ganglionic neuron, and second neuron or post ganglion activates the target tissue. Second difference. Third difference, first neuron, which is known as preganglionic, is shorter in size as compared to second. देख लें ये छोटा है, नंबर 1 नंबर 2 बड़ा नजर आ रहा है। That is also actual picture के preganglionic are shorter as compared to postganglionic. Third difference इनके न्यूरोट्रांसमीटर का भी आएगा, वो आगे हम बताएंगे। So from which segment this neuron are originated? All the sympathetic activity will depend on the function of these two neuron. ये दो न्यूरॉन जो काम करेंगे प्री और पोस्ट, इन्हीं की बेस पे सिंपैथेटिक के तमाम काम होंगे। ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं? दे ओरिजिनेट फ्रॉम thoracic segment 1 to lumbar segment 2. That is why this sympathetic nervous system is also called as thoracolumbar outflow. क्या कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को? इसको thoracolumbar outflow भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? thoracolumbar outflow. Why? Because it is originated from the thoracic and lumbar segment of spinal cord. आगे चलते हैं। Now sympathetic division क्या होती है? Same thing repeated के preganglion neuron located in the lateral horn of spinal cord. ये कह रहा है कि नंबर 1 की सेल बॉडी, ये तो उसका एग्जाम था preganglionic neuron का, ये इसकी सेल बॉडी जो होती है स्पाइनल कार्ड के लेटरल एक्सॉन के अंदर होती है, लेटरल हॉर्न के अंदर होती है, and its axon emerges from spinal cord from the level T1 to L2, so called thoracolumbar division. Same thing I explained. देखें, लेकिन यहाँ एक दूसरी चीज दिखाई गई है, देख लें आप। फर्स्ट न्यूरॉन जहां हमने नंबर 1 दिया था पीछे, दिस नंबर 1, इनको कहा था प्री गैंग्लियनिक, ये शॉर्टर थे, ठीक है। लेकिन यहाँ भी लेकिन एक चीज आप देख लें कि यहाँ पर ये लिखा हुआ एड्रिनल मेडुला में अगर हम देखें, ये ब्लूइश नंबर 1 तो नजर आ रहा है, नंबर 2 न्यूरॉन हमें नजर नहीं आ रहा। ब्लू जो है डार्क ब्लू इनमें तो है पोस्ट गैंग्लियनिक, एड्रिनल मेडुला में नहीं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाई दिस इज स्पेशल थिंग फॉर एड्रिनल मेडुला। और नंबर 2 न्यूरॉन की जगह यहाँ लिखा हुआ क्रोमेफिन सेल, इट मीन कि सेकंड न्यूरॉन इज रिप्लेस्ड बाय क्रोमेफिन सेल इन एड्रिनल मेडुला। दिस इज स्पेशल थिंग फॉर एड्रिनल मेडुला, दैट वी विल डिस्कस फर्दर। तो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन ओरिजिनेट फ्रॉम thoracolumbar segment, so this system is also known as thoracolumbar division. अब देख लें न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं। ये प्री गैंग्लियनिक नंबर 1 न्यूरॉन जब नंबर 2 को स्टिमुलेट करेगा, तमाम नंबर 1 न्यूरॉन, रिमेंबर ऑल दी प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन आर नंबर 1st न्यूरॉन which are activating the ganglia. This chain means ganglia. They will release a chemical substance known as acetylcholine. Clear this concept के तमाम न्यूरॉन जो प्री गैंग्लियनिक हैं, ये देख लें, ये जो यहाँ रेडिश जो केमिकल सब्सटेंस था, ये कौन सा है?
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये न्यूरोट्रांसमीटर होगा, ये सब्सटेंस होगा एसिटाइलकोलिन तमाम में। इवन इस एंटीरोक्रोमेफिन सेल्स को एक्टिवेशन के लिए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये प्रीगैंग्लियनिक न्यूरॉन आ रहा है, ये भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करके क्रोमेफिन सेल को स्टिमुलेट करेगा। यहां भी प्रीगैंग्लियनिक एसिटाइलकोलिन रिलीज करके पोस्ट गैंग्लियनिक को स्टिमुलेट करेगा। तो ऑल दी प्रीगैंग्लियनिक न्यूरॉन रिलीज एसिटाइलकोलिन। क्लियर? अब ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, ये कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं? फैक्टर पे। ये इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसकी वजह से सिंपैथेटिक का फंक्शन होगा। सो ऑल पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो है दे विल रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन। क्लियर? तो केमिकल सब्सटेंस जो होगा दैट विल बी नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन होगा एक्सेप्ट एट स्वेट ग्लैंड। तमाम जगहों पे पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे एक्सेप्ट एट स्वेट ग्लैंड, ब्लड वेसल्स ऑफ स्केलेटल मसल एंड पाइलोरेक्टर मसल। ये बेटा 3 जगह हैं जहां पर पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज नहीं करेंगे। यानी यहां देखें एफेक्टर ऑर्गन पे हर जगह नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, हर जगह एक्सेप्ट वो मसल जो कि हेयर्स को इरेक्ट करते हैं पाइलोरेक्टल, एक्सेप्ट जो स्वेटिंग हो रही गर्मी में हमारे जिस्म से पसीना निकलता है, और ब्लड वेसल स्केलेटल मसल। सिर्फ 3 जगह जहां पे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज नहीं होगा नंबर 2 न्यूरॉन से, वहां पर सेम नंबर 2 न्यूरॉन भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा। तो दिस इज एक्सेप्शन। रिमेंबर दिस फॉर बीसी। क्लियर? तो all preganglion neuron release acetylcholine, all postganglion release norepinephrine except sweat gland, blood vessels and pilorectal muscle. अब ये सिंपैथेटिक सिस्टम देखें, थोरैक्स और लंबर रीजन से ओरिजिनेट हो रहा है। ये देखें क्या कर रहा है, ये हम फंक्शन बाद में इसमें भी दिखाया गया है। डायलेट करता है प्यूपल को, और जो है और कई काम है, एक्सेलरेट करता है हार्ट। इन पे हम आगे आएंगे कि क्या फंक्शन कैसे करता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब एड्रिनल मेडुला का पहले ही बताया कि वो डिफरेंट कैसे, इसको आपने समझना है कि एड्रिनल मेडुला के पास, यहां हम देख लें, यहां देखें आप इस डायग्राम में देखें, ये देखें एड्रिनल मेडुला में क्या कर रहा है। नंबर 1 न्यूरॉन 2 सेकेंड न्यूरॉन के साथ मिल रहा है। यहाँ सेकेंड न्यूरॉन का तो नाम ही नहीं, यहाँ लिखा है क्रोमेफिन सेल। तो आप इसको ऐसे समझें, क्या आपको ये स्ट्रक्चर, सी दैट, ये स्ट्रक्चर आपको इसकी तरह नजर आ रहा है कि लाइट ब्लू आ रहा है, डार्क ब्लू के साथ यहाँ साइनेप्स कर रहा है। यहाँ देखिए एक फर्स्ट न्यूरॉन आ रहा है प्रीगैंग्लियन, यहाँ किसी चीज के साथ साइनेप्स कर रहा है। तो दिस इज सेम लुक लाइक दिस गैंग्लिया। सो दैट इज व्हाई एड्रिनल मेडुला इज नोन एज sympathetic ganglia. Special nature, what special nature की preganglionic sympathetic nerve fiber pass without synapsing in the ganglia. पहले गैंग्लिया में साइनेप्स नहीं करते, they end synapse directly on the modified neuronal cell called enterochromaffin cell, और वो enterochromaffin cells के साथ जैसे ही साइनेप्स करेंगे वहां से नॉरएपिनेफ्रिन और कुछ एपिनेफ्रिन भी रिलीज होगा। वो चीजें ब्लड में जाएंगी, ब्लड से पूरे जिस्म में फैलेंगी, वही काम करेंगी जो वो फाइबर कर रहे थे। ये फाइबर ये जो काम करेंगे सिंपैथेटिक के लिए, सेम काम एड्रिनल मेडुला से जो रिलीज होगा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन वो करेंगे। तो फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेडुला इज सेम एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इट एक्ट्स लाइक द सिंपैथेटिक गैंग्लिया। अब इसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, देन यू विल क्लैरिफाई कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द फंक्शन के कैसे एक्टिवेशन होता है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करें आप लोग। सपोज करें, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल के सपोज यू आर अपीयरिंग इन द वाइवा एंड you have to face the examiner. Your roll number is 5, suppose. First student came from the examiner and she said to you, I haven't answered any question to that examiner. The examiner is very angry. He is asking a very typical question, out of course question, which I haven't remember, and I am unable to give answer. First student came and give you that response. Second student came that also give you that response.
कि वो भी बता रहा है कि जो एग्जामिनर पूछ रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, सब आउट ऑफ कोर्स पूछ रहा है, उस वक्त जो आपकी सिचुएशन होगी क्या होगी, आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फुल एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपने अब इस एग्जामिनर को आपने फेस करना है। उस वक्त आपकी जिस्म में अलार्म बज जाएगा, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी, ऑल द सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाएगी, एड्रिनल मेडुला विल रिलीज एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। उस वक्त जो आपकी हेड टू टो तक जो पोजीशन होगी, आपकी बॉडी जो फंक्शन करेगा वो तमाम सिंपैथेटिक के फंक्शन है। सपोज कैसे, आईज डायलेट हो जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी, बिल्कुल आप अलर्ट हो जाएंगे, अब हमने फेस करना है। इवन लंग्स का फंक्शन बढ़ जाएगा, लंग्स डायलेट हो जाएंगे, आपके ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाएंगे, सांस जल्दी जल्दी लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आए, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, इवन आप फील करेंगे पाल्पिटेशन के, दिल तेज तेज धड़क रहा है। ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन ये स्किन के अंदर होती है, ऑल दो स्केलेटल मसल्स के अंदर ये डायलेटेशन हो जाती है। इसको आप थोड़ा सा ज्यादा इस पे डेप्थ में नहीं जाएं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, मींस रिलैक्स ऐसे हो जाता है कि इसके स्फिंक्टर्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं, जीआईटी रिलैक्स हो जाती है, ब्लैडर रिलैक्स होता है, क्लियर। और जो है और भी फंक्शन होते हैं, यूट्रस में भी सम रिलैक्सेशन होती है। तो ये मेन यानी आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है इमरजेंसी के लिए, आंखें खुल जाना, ब्रोंक्यूल्स का डायलेट हो जाना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, सो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल द टिश्यू and that becomes you more alert to face that thing, even emergency. This is known as fight or flight. या किसी का झगड़ा होता है उसमें भी ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, सेम थिंग रिपीट होती है, that is known as fight flight response. तो हार्ट रेट इंक्रीजेस, जनरली ब्लड वेसल इन स्केलेटल मसल डायलेट होते हैं। क्यों डायलेट होते हैं? कि एक्स्ट्रा सप्लाई करें स्केलेटल मसल को। ब्लड वेसल इन वेसरल मसल कंस्ट्रिक्ट, विसरा से ब्लड इसलिए कंस्ट्रिक्ट होते हैं कि विसरा से स्पेशली स्किन से ब्लड मूव कर जाए स्केलेटल मसल के पास और बॉडी ऑर्गन के पास। अक्सर स्किन में कंस्ट्रिक्शन होती है तो सिंपैथेटिक या टेंशन में स्किन बिकम्स पेल येलो हो जाती है, दैट इज ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन। डाइजेशन इज सीज, डाइजेशन रुक जाती है अपनी जगह पे, भूख वगैरह खत्म हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती, वजह यह है कि डाइजेशन इज सीज्ड। प्यूपल डायलेट, सिलेवरी प्रोडक्शन डिक्रीज, मुंह खुश्क हो जाता है क्योंकि मुंह के अंदर जो सैलिवा है दैट प्रोडक्शन डिक्रीज। स्वेट इंक्रीजेस, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, क्लियर। So these are its function, simple function. When you will study from the book you will understand all these things कि क्या क्या इसमें होता है, clear। तो sympathetic nervous system prepare the body for emergency, flight, fight response, clear। So what we have discussed, we will repeat कि first we have discussed ganglion, collection of cell body within the nervous system, outside the central nervous system or in peripheral nervous system, that was called as ganglia. In the ganglia, preganglionic neuron was coming and synapses with the postganglionic neuron. Then we have studied preganglionic neuron ke they originate from the thoracic and lumbar segment for the sympathetic nervous system. Size of preganglionic neuron was shorter as compared to post. Transmitter mean which substance this was releasing, they all were releasing acetylcholine, all were releasing. Postganglionic neuron we discussed कि it is larger in size as compared to preganglionic neuron and it always release norepinephrine except at 2 or 3 places, at sweat gland, at piloerector muscle and at blood vessels to skeletal muscle. This postganglionic neuron release the acetylcholine except it release norepinephrine. Neurotransmitter are these ke all at all ganglia level, acetylcholine at tissue level, norepinephrine with some exception. Adrenal medulla we discussed ki it act as sympathetic ganglion ke where preganglionic neuron come and synapse with the enterochromaffin cell, then this cell release norepinephrine and epinephrine. That epinephrine and norepinephrine come into blood and from blood that is supplied to whole body, every tissue is supplied by these chemical substance and they do activate human body in such a way that prepare the human body for fight and flight response. What are these function response? In the eyes there is dilatation,
In the mouth, there is cessation of the saliva secretion. In the GIT, there is relaxation. Even long-term activation of sympathetic nervous system when GIT motility is decreased, that may cause constipation. And also in the lung system, it activates the lungs in such a way that prepare our lungs to get more oxygen. So for that purpose, sympathetic nervous system dilates the bronchiole so that we easily breathe in and out. On the heart, it activates heart in such a way that heart rate increase, rhythm increase, function of the heart increase. Clear? So these are the function of that. So here ends our lecture. Thank you for that. Sympathetic. In next lecture we will do parasympathetic.